everyone, namaste and annyeonghaseyo. Welcome to my channel Piyuchino. So आज I'm going to do my most requested video, and as you can also see in title, it's about Korean government scholarship program in Korea. I have come to Korea with a scholarship that is provided by Korean government. So मुझे ये क्वेश्चन इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि आप कोरिया में कैसे गए, हाउ टू गो टू कोरिया, कैन आई स्टडी इन कोरिया, so many questions. So I decided कि मैं एक वीडियो ही बना देती हूँ उस पर. तो अगर आप ये प्रोग्राम में ज्वाइन करना चाहोगे ये साल अगले साल, तो फिर प्लीज आपका नोटपैड निकालो and then start writing the tips that I'm going to provide from now on. Without wasting any time, let's get started. So this scholarship is provided by Korean government. It's offered to both undergrad and postgraduate programs. So undergraduate program में you can choose a bachelor's degree, and in graduate programs you can choose a master's or PhD or research. I'm going to mainly talk about the graduate scholarship because I have come to Korea with the graduate scholarship program. So for graduate programs, this scholarship is provided about every February. At the beginning of the February, it will be posted on the studyinkorea.go.kr. On this website they will post it. This scholarship is provided via two tracks. As some of you might have heard about it, एक होता है यूनिवर्सिटी ट्रैक और दूसरा होता है एम्बेसी ट्रैक. इसमें क्या फर्क होता है? तो यूनिवर्सिटी ट्रैक में यू अप्लाई टू ओनली वन यूनिवर्सिटी, बट यू अप्लाई टू द यूनिवर्सिटी डायरेक्टली. द थिंग इज कि पहले तुमको यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करता है या एक्सेप्ट नहीं करता है, और उसके बाद you go through the scholarship program. So whether you get scholarship or you don't get the scholarship. But if you apply through the embassy track, you can apply to 3 universities. First ये decide होता है कि whether you will get scholarship or not, and then the university will either accept you or not accept you. सबसे पहला डिसीजन तो आपका बड़ा डिसीजन इस पे होता है कि आपको कौन से ट्रैक से अप्लाई करना है. मैंने पर्सनली तो एम्बेसी ट्रैक से अप्लाई किया था क्योंकि मैं यूनिवर्सिटीज में डिसाइडेड नहीं थी कि मुझे कौन से यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है. बट अगर आपका रास्ता क्लियर है, इफ यू नो दैट विच यूनिवर्सिटी यू आर गोइंग टू अप्लाई, टेंशन फ्री होके सीधे यूनिवर्सिटी ट्रैक अप्लाई कर लो. बट अगर रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो डेफिनेटली गो फॉर द एम्बेसी ट्रैक. सो एम्बेसी ट्रैक से यू कैन अप्लाई टू 3 यूनिवर्सिटीज और वहाँ पे टोटल सीट नंबर होता है 22. But if you are applying through university track, there are about 30 seats. So as you can see, there are more seats available in university track. Total अभी इंडिया के 52 सीट्स हो गए हैं. इनफैक्ट मैंने जब अप्लाई किया था तब इट वाज ओनली 17. तो 17 थे बस. तो अभी मुझे लगता है ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ज़्यादा हो गए. सो इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू गाइज कि तुम लोग का एक्सेप्टेंस रेट अभी और ज़्यादा बढ़ गया है. What are all included in this scholarship? So इस scholarship के benefits क्या है? तो सबसे पहले चालू करते हैं the flight ticket. So they provide you flight ticket. Then after you come to Korea, they give you settlement allowance. Then they provide you monthly allowance. If you are doing graduate program, then they also provide you research allowance every semester. And if you have not learned Korean language or if you do not have topics, so you have to go to the language school. For that language school, they also provide you all the language school training free. So you don't have to pay anything for learning the language. They also provide you tuition fee, medical insurance. There are additional allowance given if you have topic 5 or topic 6. But also at the end, once you graduate, they also give you degree completion allowance and they also provide you a flight back to home. So basically, मुझे पता है, मुझे ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि is this scholarship enough to survive in Korea? It is enough. This money is enough to survive in Korea. उतना ज़्यादा भी पैसा नहीं है कि तुम सेव कर पाओगे, but it is enough for you to survive. Like you know, थोड़ा बहुत कोरिया के अंदर ट्रैवल भी कर लो, इतना पैसा रहता है. And I also get asked a lot about part-time jobs. So are part-time jobs allowed in Korea? So अगर मुझे ये scholarship मिलती है during this semester, I am not allowed to do any kind of part-time job. जैसे ही vacation चालू हो जाता है, vacation is about 2.5 months. You can find a part-time job. You can get a special permission, and then you can also do a part-time job during your vacation. तो अभी अगले सवाल पे जाते हैं, हाउ टू अप्लाई.
मैं आपको बहुत सिंपल वे में बताऊंगी. सो दोज हु आर गोइंग टू अप्लाई थ्रू यूनिवर्सिटी ट्रैक, वो डायरेक्टली उनका कुरियर यूनिवर्सिटी को भेज सकते हैं. दोज हु आर अप्लाइंग थ्रू एम्बेसी ट्रैक, यू ऑल्सो हैव टू विजिट अनदर वेबसाइट टू अप्लाई. इट इज कॉल्ड द MHRD website. You send your courier to MHRD, not to the embassy. You have to send it to the MHRD. Even if it's called embassy track, you don't send anything to the embassy. इसीलिए it's also important to visit this website, क्योंकि ये वेबसाइट पे अलग से you will have notice. Also remember कि you also have to go to the online website that is mentioned on MHRD. तो उधर अलग से जाके उधर ऑनलाइन भी एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है within the deadline that they give. So this is basically how you apply. I'm not going to go in detail about the procedure. Let's move on. About grades. This is a very important question that I get asked a lot. Even I was confused about grades. यहाँ पे mention करते हैं कि you need to have 80%, otherwise you will be disqualified. मुझे पता है most of us are from JNU or DU या फिर कोई ऐसे institute जहाँ पे हमको 80% नहीं मिलता है, because it's difficult to get 80% in India. तो उधर नीचे लिखा हुआ है देखो that अगर तुम्हारा percentile grading system अलग है तो you have to attach एक separate document जहाँ पे mention किया होता है कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी में या इंस्टीट्यूट में ग्रेडिंग सिस्टम कैसा रहता है. सो डोंट वरी अबाउट दिस. इवन इफ यू हैव लोअर देन 80%, डोंट वरी, जस्ट अप्लाई. यू वोंट बी डिस्क्वालिफाइड, आई अश्योर, बिकॉज इवन आई डिडंट हैव 80%. सो डोंट वरी, बट मेक श्योर दैट यू आर अप्लाइंग, यू आर गोइंग टू योर डिपार्टमेंट्स वेबसाइट और योर यूनिवर्सिटी वेबसाइट जहाँ पे पूरा ग्रेडिंग सिस्टम एक्सप्लेन किया होता है. जितने भी पेजेस हो सारे प्रिंट करो और तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स में अटैच कर दो, बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट. और ऑल्सो यू एड अनदर डॉक्यूमेंट एक्सप्लेनिंग द 80% कन्वर्जन सिस्टम. ये ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके भी लगा सकते हो. अभी मूव ऑन होते हैं बेसिक एलिजिबिलिटी पे. तो बेसिक एलिजिबिलिटी इज लाइक यू शुड बी इंडियन सिटीजन, like your parents should be Indian citizen, and you have to submit some proof stating your parents being Indian citizen and also yourself. And you also have this age requirement. मुझे लगता है those who are going to apply this year in 2021 for graduate program, you have to be born by September 1981. Also about degree requirement, so ये लोग ना मांगते हैं कि 31 अगस्त 2021 जो अभी ये साल अप्लाई करेगा उन्होंने उनका डिग्री सर्टिफिकेट सबमिट करना चाहिए. अभी ऐसे भी काफी लोग होंगे जो बैचलर्स अभी खत्म करेंगे और मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, एंड देन यू माइट नॉट गेट तुम्हारा सर्टिफिकेट बाय 31 अगस्त. तो मेक श्योर यू टेक अ स्पेशल परमिशन और स्पेशल एक्सटेंशन वाया एम्बेसी, बिकॉज ये करना बहुत जरूरी है. मैंने ये स्पेशल एक्सटेंशन लिया था क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी तो मेरे सिर पे बैठी थी. मैं बस आपका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहती, इसीलिए आप डायरेक्टली एम्बेसी से कॉन्टेक्ट करके उनसे परमिशन मांग सकते हो. बट ऑल्सो मेक श्योर यू गेट योर डिग्री इन advance, or you apply to your degree in advance. So I get asked this question a lot about, is learning Korean or English or is taking TOPIK or IELTS or TOEFL IBT required before coming to Korea? It's not compulsory to take them, but अगर आपको chances बढ़ाने हैं एप्लीकेशन के तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप टॉपिक डेफिनेटली देने का ट्राई करो या फिर एटलीस्ट टोफल देने का ट्राई करो, बिकॉज इंडिया इज नॉट सीन एज अ नेटिव इंग्लिश स्पीकर कंट्री. सो a lot of times they ask you to submit your TOEFL or IELTS result. If you have the money and time to prepare for this exam, do give it. It will count as additional bonus point, but it is not a requirement. So अगर आपके पास उतना टाइम या मनी ये सब नहीं है, कोई बात नहीं, टॉपिक या टोफल दोनों करने की जरूरत नहीं है, but it can be a bonus point if you do both. Is it required to learn Korean language before applying to this scholarship program? Even if you don't know a single word of Korean, they provide you with language school program or with language school training जो भी completely free होती है and it's included in this scholarship. So basically तुम्हारा डिग्री प्रोग्राम अगर 2 साल का होगा मास्टर्स का, you have to spend additional 1 year studying Korean language program outside Seoul. So even if your main university is going to be in Seoul, your language school is going to be outside Seoul. But अगर आपके पास already topic 5 या topic 6 है तो language school program नहीं करना पड़ता, you directly start your university school. Also about the visa type, you have to apply to D4 visa type if you are going to the language school program. अगर आप directly university school चालू कर रहे हो तो आपको additional scholarship भी मिलता है, आपका visa type भी D2 होता है. But अगर आप language school apply कर रहे हो तो 1 साल के लिए आपका वीजा रहता है D4, जो 1 साल के बाद आपको यहाँ इमिग्रेशन ऑफिस से चेंज करना पड़ता है D2 को. जैसे कि हमको
हमको ये स्कॉलरशिप कोरियन गवर्नमेंट से मिल रही रहती है, इसीलिए हमको वीजा इज ऑल्सो कम्प्लीटली फ्री इफ यू आर नॉट अप्लाइंग टू कोरियन एम्बेसी, इफ यू आर अप्लाइंग टू सम कॉन्सुलेट इन योर रीजन. तो मेक श्योर योर कॉन्सुलेट ऑल्सो नोज दैट यू आर अ गवर्नमेंट स्कॉलर एंड you do not have to pay any visa fee. Now I'm going to move on to some additional tips. First of all, transcript. It is a very high time in January to apply for your transcript. The thing is, transcript is nothing but your grades explained. Your transcripts are required every time you have to study outside your country. This transcript are most important thing in this application. So make sure you apply to transcript in advance because बहुत सारे बड़ी बड़ी universities take time to give your transcript back. Second point is letter of recommendation. So अभी you have to give 2 letter of recommendations. I would suggest if you are studying Korean at some language institute or if you are studying something related to your major, make sure you go to one of the professors and take your letter of recommendations. If you are done any internship or if you have worked for some company for short time as an employer, you know, or as an ex-employer, उनसे recommendation letter मांगो. Third point, SOP and personal statement पे आते हैं. It is the most important part of your application. Grades are also important. Grades also matter. But जितना SOP और personal statement तुम ज़्यादा अच्छा और तगड़ा लिखोगे, उतना ही तुम्हारा accept होने का chance बढ़ेगा. Personal statement पे खुद की family की story मत लिखो. Try to be as professional as possible और ज़्यादा खुद के emotions उसमें mix मत करो. तो make sure that you are stating your points very clearly and your English is very good and profound, and also do not try to make it like I like to do this, I like to do that, so don't mention that I a lot. You can go online and like you know search and go through a lot of personal statements. उधर जाके तुमको भी पता चलेगा कि कैसे लोग personal statement लिखते हैं. Don't copy from it, imagine your own idea. Explain करो उसमें कि क्यों Korea, why that major, how did Korea inspire you or how did your major inspired you and how did you decide that Korea में तुमको ये मेजर करने में क्या बेनिफिट्स मिलेगा. डोंट मेक इट लाइक यू नो मुझे ये के पॉप बैंड पसंद है या फिर मुझे के ड्रामा देखना पसंद है और मुझे कोरियन कल्चर बहुत पसंद है. ऐसे सब मेंशन मत करो क्योंकि ये सब मेंशन करते हैं. मेक श्योर कि यू मेंशन समथिंग यूनिक, समथिंग ऑफ योर ओन, तो जो उनको भी अट्रैक्टिव लगे. पर्सनल स्टेटमेंट होता है 1 पेज का और SOP होता है 2 पेज के. वो 3 पेज बहुत मायने रखता है. और SOP पे बेसिकली यू आर स्टेटिंग अ पर्पस ऑफ व्हाई डू यू वांट टू स्टडी दैट मेजर इन दैट यूनिवर्सिटी. So make sure you know a lot about that university. मैं ये यूनिवर्सिटी में क्यों अप्लाई करना चाहती हूँ, मैं वो यूनिवर्सिटी में वो मेजर क्यों करना चाहती हूँ. So make sure तुम काफी रिसर्च कर रहे हो वो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के पहले. ऐसे मत लिखो कि SNU सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है इसीलिए मैं अप्लाई करी हूँ. डोंट डू दैट. उससे बेटर है कि तुम यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री में जाओ, कौन सी हिस्ट्री में कौन से पार्ट में तुमको कौन से चीज ने इंस्पायर किया, मेंशन दैट. और इफ यू नो एनीथिंग अबाउट एनी प्रोफेसर्स, मेंशन देम कि ये प्रोफेसर ने ये रिसर्च किया था, मुझे वो आर्टिकल पढ़ के इंस्पायर हुई और तब से मुझे वो यूनिवर्सिटी जाने का मन हुआ. दीज आर स्मॉल पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू डोंट वांट टू मेंशन लाइक यू नो योनसे यूनिवर्सिटी इज द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन कोरिया, दैट्स व्हाई आई एम अप्लाइंग हियर. ऐसे मेंशन करोगे तो योर SOP इज मोस्टली गोइंग टू बी नॉट गुड. यू ऑल्सो डू इनफ रिसर्च अबाउट योर मेजर. फॉर एग्जाम्पल अभी आई अप्लाइड फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. सो मैंने काफी चीज मेंशन की है कि मुझे क्यों फूड सिक्योरिटी के बारे में पढ़ना है, क्यों मैं उसके बारे में कोरिया में पढ़ना चाहूंगी, क्योंकि फूड सिक्योरिटी तो तुम इंडिया में भी पढ़ सकते हो, उसके लिए तुम्हें कोरिया क्यों आना है. सो इवन इफ योर स्टोरी इज नॉट ट्रू, it's okay. You just have to convince them that your story is true. That is also an important factor in your interview because interview में वो लोग वही पूछने वाले हैं. Why Korea? What do you know about Korea? Are you going to Korea because you like K-pop or K-drama? Say no to that. You should know as much as you can about Korea. बस K-pop and K-drama, but you should know about its history, its culture, its society and बाकी भी काफी चीजें in depth. Let's move to another point. There is a mention about awards and certificates. So इसके लिए मैं बहुत recommend करूंगी कि आपने अब तक जो भी extra curricular चीजें किए हैं इन योर स्कूल और यूनिवर्सिटी, मेक श्योर यू मेंशन ईच वन ऑफ देम. मैंने तो हर मेरे को जो भी सर्टिफिकेट मिला है उसका कॉपी बना के पता है सब मैं ऐड कर दिया था जस्ट टू शो देम दैट ये मैंने किया है. जस्ट डोंट स्टेट दैट इन योर पर्सनल स्टेटमेंट एंड SOP. ऑल्सो प्रोवाइड ऑल द सर्टिफिकेट्स दैट यू हैव. मैंने तो पता है एलिमेंट्री स्कूल में जो किया है वो वाले सर्टिफिकेट्स लगा दिए थे. और अगर आप ये स्कॉलरशिप को ये साल नहीं बट अगले साल अप्लाई करना चाहोगे या तो मेक श्योर कि अभी से यू ऑल्सो स्टार्ट फोकसिंग ऑन एक्स्ट्रा करिकुलर बिकॉज वो
वो भी काफी मायने रखता है। इनफैक्ट कॉलेज में जो भी सेमिनार हो रहे हैं वो अटेंड करो। कोई भी सेमिनार आपको अगर फालतू सा सर्टिफिकेट भी क्यों ना हो, अगर दे रहे हो तो वो अटेंड करो, क्योंकि ये सब छोटी छोटी चीज बाद में आपको लगेगा कि थैंक गॉड मैंने ये अटेंड किया, क्योंकि इसका सर्टिफिकेट मैं भी इधर लगा सकती हूँ। एंड लास्ट पॉइंट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज अबाउट नोटराइजेशन और अपोस्टल। तो यहाँ पे मेंशन किया है कोरिया में जनरली ओरिजिनल कॉपीज एक नहीं काफी दिए जाते हैं, बट कंपेयर टू इंडिया में हमको ओरिजिनल कॉपी एक ही मिलती है। बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर डिग्री सर्टिफिकेट तक हमको ओरिजिनल कॉपी एक ही मिलती है। इसका कॉपी बना के यू कैन गेट इट नोटराइज्ड और अपोस्टाइल। मैंने तो सीधा एक लॉयर के पास जाके मेरे कॉपीज पे साइन मारे थे, और उधर कुछ लाइक एक पेज के 10 रुपए ऐसे कुछ लेते हैं। अगर अपोस्टाइल करने जाओगे तो बहुत पैसा लगेगा, क्योंकि एक दो अपोस्टाइल के कुछ 500 या 1000 रुपीज लग जाते हैं। सो नोटराइज भी कर सकते हो, और यू डोंट हैव टू डू अपोस्टाइल। अपोस्टाइल के लिए टाइम भी लगता है, पैसा भी लगता है, तो नोटराइजेशन वुड बी अ बेटर एंड चीपर ऑप्शन। सो डोंट इवन वरी अबाउट नोटराइजेशन, बस मेक श्योर कि यू आर नोटराइजिंग ईच एंड एवरी कॉपी, बिकॉज वो भी यू डोंट वांट टू गेट इनटू ट्रबल कि बिना बात का तुम्हारा एडमिशन डिस्क्वालीफाई हो जाए। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। सो आई होप दिस वाज वेरी हेल्पफुल, क्योंकि मैंने जितना बेसिक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है उतना दी विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आई होप आपने ये सब पॉइंट नोट डाउन कर लिया हो, बिकॉज यू नो व्हाट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं और मुझे ये सब एक्सप्लेन करने के लिए कोई नहीं था। इवन इफ इट्स थ्रू यूट्यूब, मैं चाहती हूँ जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, मेरा जो नॉलेज है वो आपके तक पहुंचे और मैं आपको हेल्प कर सकूँ। सो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड ऑल्सो तब तक के लिए बाय बाय। और आप देख रहे थे प्यूचिनो।